Lesson number 30 today, and topic of discussion is past indefinite tense. In this tense, we will try to discuss the structure of sentences totally in animated style, uses of past indefinite tense. This is also called past simple tense. A discussion on common mistakes, practice exercises, self-practice exercise, and much more. One special thing has been introduced this time: 12 tenses quick learning table. So I welcome you everyone. I welcome you all in this lesson. Let us move ahead without wasting any time. Understanding the concept of past tense. Suppose this is the timeline and we are here, and this is now, and this is the present time. Present. And what will happen after this time? That may be one day, 2 days, or many years. That will be known as future. So everything that will happen after today onwards, that is called future. And what has happened earlier, it may be yesterday or many times, many years ago, that is called past. So regarding past indefinite tense, action started and ended in the past, that must belong to the past indefinite or past others perfect, like this. So it has been decided what is happening now, what is called about nowadays, that is called present, and what will happen after today, that is future, and what has happened earlier, that is called past. So regarding past indefinite tense, I am taking a few examples. I saw a movie yesterday. मैंने पिछले कल एक मूवी देखी. So yesterday is showing that this sentence belongs to the past tense. Last week I went to market for shopping. Last week, these two words claiming that this is the matter of past tense. And 4 years ago, I moved to America. So these certain sentences tells about the concept of past tense. Structure of sentences. Past indefinite simple tense. इसके स्ट्रक्चर की जाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, interrogative, negative, and WH family. You see, first of all, affirmative, subject, then second form of verb, then object. So past indefinite tense में सबसे बड़ी बात या अफर्मेटिव की बात आएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात आएगी, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगी. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस था, और यहाँ पर क्या है, वी विल टॉक अबाउट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड सेंटेंस इज शी कुक्ड फूड. सो इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. देयर शी सब्जेक्ट एंड कुक्ड फूड. कुक, द फर्स्ट फॉर्म इज कुक, इसके सेकंड फॉर्म क्या कुक्ड. तो सेकंड फॉर्म यहाँ रखिए, उसने शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया. एंड नेगेटिव क्या होगा भाई? नेगेटिव में सबसे बड़ी किस चीज़ की जरूरत होती है? फॉर अटैचिंग नोट वी रिक्वायर सम हेल्पिंग वर्ब, बट इन द अफर्मेटिव फॉर्म देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. द हेल्पिंग वर्ब विल कम फ्रॉम आउटसाइड. तो यहाँ देखिए कौन सा आता है, सब्जेक्ट. पीछे तो डू और डज आया था. प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज बाहर से आए थे, क्योंकि वहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी,
और बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था. Similarly, in this tense, there is no helping verb in the affirmative form. For making it negative, you require some helping verb. तो ये कौन सा आएगा देखिए, अब देखिए did आएगा और did के साथ not. और इससे सबसे बड़ी बात, कोई did is the second form of do. did second verb की फॉर्म है, तो जो मेन वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि दो बार सेकंड की वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. सो पहचान सबसे बड़ी पास्ट इंडेफिनिट की क्या है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का होना जरूरी है. इन द अफर्मेटिव केस द सेकंड फॉर्म वर्ब इज बी टू हिज मेन वर्ब, बट व्हेन इट इज नेगेटिव और इंटरोगेटिव or we use WH family, what is there? Did comes from outside, as did is already in the second form, so after that we use the first form of main verb. So subject did not, verb first form of verb and object. And example is, पहले थी example she cooked food, अब क्या हो गया she did not, तो did not आ गया यहाँ cook, first form of verb food. तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अब डिड लगा दिया तो यहाँ मेन वर्ब के जो मेन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी. अफर्मेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, पर जहाँ अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट डिड से होगा. देखो यहाँ तो बहुत बढ़िया है, इंडेफिनिट में तो एस और एस का चक्कर था, पर यहाँ तो और डू डज का चक्कर था, पर जहाँ पर कोई नहीं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. सब्जेक्ट कुछ भी हो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, डिड, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन. इसके एग्जांपल देखिए, मेन क्या थे शी कुकड फूड, तो यहाँ डिड लगे आगे, डिड शी कुकड नहीं आया, कुक फूड, डिड शी कुक फूड, डिड आ गया तो यहाँ कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है. अब हमारी फॉर्म नेगेटिव इंटरोगेटिव. नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है, वो सारे स्ट्रक्चर वैसे ही है, पर सब्जेक्ट के साथ नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो आपके माइंड में ऐसे बैठ जाना चाहिए, स्ट्रक्चर्स दिमाग में उठानी है, इसका आपने कहीं लिखना नहीं कहा उसके ऊपर, इसको दिमाग में उठाइए कि स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वैसे ही सेंटेंस बनते हैं. तो देखिए डिड शी नॉट, नॉट जहाँ पर है कुक फूड, पहले क्या डिड शी कुक फूड, देन डिड शी नॉट कुक फूड. इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, डिडंट शी, अगर डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, शॉर्ट कर दें इसको, तो डिडेंट बोलते हैं इसको, तब हम नॉट को शी के बाद नहीं ले जाएंगे, तब इसको पहले कर देंगे, डिडेंट शी कुक फूड, लाइक दिस. अब आती है WH फैमिली. WH फैमिली में जैसे वाई, वेयर ऐसे बड़े हैं, हाउ भी है, तो सात जो भी हैं, तो वो कैसे लगाएंगे. WH फैमिली जहाँ मेंबर आ जाएगा, उसके बाद ये इंटरोगेटिव है, ये सारा स्ट्रक्चर यही आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. अगर इसको नेगेटिव करना हो तो WH जहाँ लगा दो, अगर पॉजिटिव वाला हो इंटरोगेटिव तो WH इसके आगे लगा दो. ये पहले मैंने ऐसे किया था, अब ऐसे है. तो इसकी एग्जांपल क्या होंगी, वेयर डिड शी कुक फूड. देखो ये डिड शी कुक फूड था, यहाँ पर आगे वेयर लग गया, कहाँ कहाँ होता है इसका, वेयर डिड शी, उसने खाना कहाँ पकाया. वाई डिड शी कुक फूड, उसने खाना क्यों पकाया. हाउ डिड शी कुक फूड, उसने खाना कैसे पकाया. तो ये समझाने के लिए हिंदी थोड़ी बोलता हूँ इसमें, ताकि छोटे बच्चों को समझ आ जाए. वाई डिड शी नॉट कुक फूड, उसने खाना क्यों नहीं पकाया. बाय डिडेंट, इसके आगे आएगा बाय डिडेंट शी कुक फूड. तो ये आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने यहाँ कुक लिया है, आप बाकी और वर्ब लेकर भी कर सकते हो. तो यहाँ एक निष्कर्ष, रिमेंबर सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब B2 used only in affirmative form of sentence in past indefinite tense. सिर्फ affirmative form में
मेन वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बाकी हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और करेंगे ताकि आपको रेगुलर वर्ब्स की बात की जाएगी। और रेगुलर वर्ब की बात, रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जैसे वर्क वर्कड, क्लीन क्लीनड, वॉच वॉच्ड, ऐसे होते हैं। ये डी और ई डी लगाने के साथ, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म डी ई डी और या डी लगाने के साथ बने, जैसे यहाँ ई डी लगा जी, दिस इज़ ई डी, ये ई डी, दिस इज़ ई डी, दिस इज़ ई डी, एग्जाम्पल इसमें वो भी हो सकती है डी वाली। तो अब मैं आपको करूँगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाएगी, क्वेश्चन। तो ये थोड़ा अभी मैंने जो किया है पीछे स्ट्रक्चर की, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है हमने। देखो आई यू वी दे, टू बॉयज़, ये सारे क्या हैं, ये हमारे यहाँ प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। और टू बॉयज़ को मैंने वैसे नॉन यानी प्लूरल नॉन करने के लिए, और जो कि ही शी इट ए बॉय, ये सारा क्या है, ये सिंगुलर वाले हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड सिंगुलर नाउन। इनके साथ या मैं बोलूँगा आई, या बेस फॉर्म में वर्क ले लूँ तो क्या आएगा, आई वर्कड, यू वर्कड, वी वर्कड, ऐसे आप बोलेंगे ए बॉय वर्कड। बाकी सारे बोल के देखेंगे जोर से। कहते हैं सर नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव में यहाँ बीच में क्या आएगा, डिड नॉट, आई डिड नॉट या डिडंट, आप दोनों में से कोई बोल ले, तो यहाँ क्या आएगा, वर्क आएगा भी, आई डिड नॉट वर्क, आई डिडंट वर्क, यू डिड नॉट वर्क, यू डिड। यहाँ बेनिफिट क्या है, एक इंडेफिनिट से यहाँ एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर चाहे कोई सब्जेक्ट भी हो तो यहाँ पर की सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव में डिड नॉट आएगा और कोई ऐसा, तो एवरी सब्जेक्ट टेक्स द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द नेगेटिव, एवरी सब्जेक्ट, it may be first form, second form, anything it is, it always takes did not after that, and then comes the first form of main verb. In the question we start with did, ये सारे वही हैं, सब्जेक्ट वाले हैं। तो यहाँ इसके साथ क्या, did I work, sign of interrogation, don't forget to put sign of interrogation at the end of interrogative sentences. We can say like this, did you work, did we work, did two boys work, like this। ऐसे बोलेंगे तभी हम did बोलने की हैबिट पड़ेगी। अब देखिए रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जिनको बनाने के लिए कोई नियम ना बने, उसमें तो डी और डी लगाते थे, यहाँ गो का वेंट बन गया, बाई का बाउट बन गया, ऐसे सी का सॉ बन गया। ऐसे जिसमें कोई फार्मूला ना बने या कोई मेथड ना बने बनाने के लिए, उसको हम रेगुलर वर्ब्स। और फॉर्म भी है, इनके बारे में सोचिए, हर्ट भी चेंज ही नहीं होते, वही रहते हैं। कट, रीड, रेड, प्रोनाउंसिएशन डिफर करती है, ये बिल्कुल वैसे रहते हैं। तो रीड को हम सेकंड बोलेंगे तो रेड बोलेंगे। तो अगर मैं इसमें से कोई लूँ, मैं लिया वेंट, आई वेंट, मैं गया, तो कहते यहाँ पर क्या होगा, आई डिड नॉट गो, वेंट का फर्स्ट फॉर्म ये आएगी को, ये मिस्टेक नहीं करनी। और जहाँ पर क्या डिड आई को, हाँ बाकी वैसे जैसे मैंने पहले बोला बोलने के लिए, आप बोल के देखेंगे सारे, यू के साथ, वी के साथ, टू बॉयज़ आप टू पर्सन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आप 5 बॉयज़ ले सकते हैं। तो ये प्लूरल शो करने के लिए मैंने ए बॉय लिया, मैंने सिंगुलर नाउन शो करने के लिए, और 2 बॉयज़ मैंने लिया है। तो ये हाँ बाउट हो, अब मैंने लिया बाउट, बाई से बना बाउट, आई बाउट, आई डिड नॉट, यहाँ क्या आना चाहिए, गेस करिए, बाई आएगा, बाई। डिड आई, यहाँ भी क्या आएगा, बाई आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ऐसे चेंज होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, पहले मैंने स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ी इसमें प्रैक्टिस कर ली, आपको जाना चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। जहाँ मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए थे, तो वहाँ वर्ब्स के 5 लेसन हैं। आप वर्ब्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने के लिए यू कैन विजिट माई दोज लेसन्स। सो अब डिड का पहले कैपिटल था, डिड स्मॉल कर दी, क्योंकि मैंने वेयर डिड यू बाई या वेयर डिड आई, ऐसे आप बोलेंगे वेयर बोल के। हाउ डिड यू बाई, आपने कैसे खरीदा। व्हेन डिड यू बाई, आपने कब खरीदा। वाई डिड यू बाई, ऐसे। तो ये हमारा हो गया। आई थिंक आपने अब
मैंने एक नई प्रोसेस स्टार्ट किया, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द लेसन। तो पिछले लेसन की जो हमारी सोल्यूशन ऑफ सेल्फ एक्सरसाइज, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको देखिए और यू कैन फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। ये सिंपल था बिल्कुल, ताकि इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बिल्कुल सिंपल किया था। इस लेसन के एंड में भी आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी और जिसका सोल्यूशन आपको अगले लेसन में मिलेगा। और चलते हैं आगे। अब जो बेसिक चीज़ सॉरी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक ग्लिम्स थोड़ा मैंने कि पास्ट जो फॉर्म, पास्ट टेंस, प्रेजेंट जो वर्ब होता है उसका पास्ट वर्ब कैसे बनता है, थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। प्लस ई डी बनाकर लगते हैं कि जनरली प्लस ई डी लगाकर, जैसे वॉक, वॉकड, डिवाइडेड, डिवाइडेड, यहाँ डी लगा, देखो यहाँ ई डी लगा, कॉल, कॉल, कॉल्ड, ऐसे हो गया। कीवर्ड क्या होता है, प्लस डी करके होता है। तो बेक, बेक्ड, यूज, यूज्ड, तो ये डिवाइड वाली एग्जांपल हम यहाँ लेनी चाहिए थी। तो एक कोई बात नहीं, सिर्फ आइदर ई डी और डी। इसमें एक स्पेशल जो मैंने स्लाइड क्यों बनाई है अभी आपको पता चल जाएगा। ड्रॉप बाई, माइनस बाई करो और प्लस आई ई डी करो जब लास्ट में बाई हो और एक कॉन्स्टेंट हो, ऐसा। क्राई, क्राइड, स्टडी, स्टडीड, तो ये क्या था, वाई था, इसको ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया अभी, आई ई डी। सिमिलरली यहाँ बाई को ड्रॉप किया और यहाँ क्या आ गया, आई ई डी। तो जी अब CBC क्या है, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। अगर वर्ड के लास्ट में, वर्ब के वर्ड के लास्ट में ऐसा कम्बिनेशन हो, डबल द लेटर, डबल द लास्ट लेटर एंड प्लस ई डी, ये कर दो। या स्टॉप, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, दिस इज ओ वर्ब, दिस इज पी कॉन्सोनेंट। तो इसका वर्ब की फॉर्म सेकंड कैसे बनेगी, ये लास्ट वाले को आप डबल पी कर दिया, स्टॉप्ड, जी आ गया, स्टॉप्ड। अब और देखिए, प्लान, प्लांट, 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 तो जी एन था एल ए, दिस इज कॉन्सोनेंट वर्ब एंड वोवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, दिस इज, इसका मतलब कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट का मैंने लास्ट में तो डबल कर देते हैं, डबल एन ई डी, तो जी आ गया। योजना, स्टॉप, रोकना। रिमेंबर द फॉर्म्स एंड वर्ब्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। टेंसेस के आगे जाने से क्या आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म काफ़ी आप अच्छी से ग्रामर से अच्छा कहीं देखकर उसके स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन, जैसे रीड, रीड आगे रीड नहीं बोलना, उसको रेड बोलेंगे, कैसे बड़े हैं। तो ऐसे आप रिमेंबर करिए अच्छी तरह से, ताकि वर्ब ही हमारा टेंसेस का मेन पार्ट है, वर्ब से ही, एक्शन से ही सब कुछ बनता है, तो इसको आप रिमेंबर करेंगे। तो ये थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की, छोटा सा एक आइडिया दिया कि कैसे बनता है। आइडिया है, इसको आप इस आइडिया को अपना कर आगे देखिए। अब कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर करते हैं, पहली मिस्टेक टेंस की हो सकती है, कैसे होती है देखते हैं, अभी देखते हैं। आई गिव हिम द लैपटॉप यस्टरडे, तो जहाँ देखो वर्ब यस्टरडे लिख दिया ना, यस्टरडे पिछली बात होगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ क्या आना चाहिए, आई गिव हिम द लैपटॉप, हमने पिछले कल उसको लैपटॉप दिया, तो दिया तो यहाँ गेव आना चाहिए। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, तो इसकी करेक्टेड फॉर्म इज़ आई गेव हिम द लैपटॉप यस्टरडे। और जो गेव मैंने रेड किया है कि मिस्टेक यहाँ पर थी, टेंस की मिस्टेक यहाँ पर थी। अब वो फॉर्म में मिस्टेक हो सकती है, या वर्ब की फॉर्म लगाते हैं उसमें मिस्टेक कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, शी राइटेड द रिपोर्ट, शी राइटेड द रिपोर्ट, तो आप अभी सोचो क्या मिस्टेक है इसके अंदर। दे डिडंट कॉल्ड मी, अभी आप सोचो कि इसमें मिस्टेक क्या है। दिस इज़ रॉन्ग, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है और ये वाला भी रॉन्ग है। डिड यू हैड लंच, ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, रॉन्ग सेंटेंस, तो रॉन्ग है। व्हाट इज द मिस्टेक हियर, शी राइटेड, राइटेड नहीं होता। अब राइट की वर्ब की फॉर्म राइटेड से नहीं बनती, इसकी बनती है राइट, रोट, रिटन, तो ये रोट आगे। ये दे डिडंट, नो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, नो काट देंगे इसको। एंड दे डिडंट कॉल्ड मी, डिडंट लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा दी, तो ये क्या होगा, कॉल आएगा यहाँ पर। नो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज आल्सो। डिड यू हैड लंच, डिड आएगा तो ये वर्ब है, हैव हैड, हैड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैव आएगा। नो दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग। ओके, अंडरस्टैंड, तो ये आपको समझ आ गया। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है,
डिड के साथ बच्चे अक्सर मैंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो वहाँ मिस्टेक नहीं करनी। स्पेलिंग मिस्टेक क्या हो सकती है? ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। अब स्टॉप का वर्ब की स्पेलिंग मिस्टेक है ये। स्टॉप का जब करते हैं डबल पी करना पड़ता है। दे प्लान्ड अ विजिट टू कनाडा, तो यहाँ प्लान के मेरे गलत लग रहे हैं, तो स्टॉप्ड और ये प्लान रहेगा। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है अनजाने में। हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो सकती है, ये लिखा यू वेक अप अर्ली, यू वेक अप अर्ली, तो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा। यहाँ तो शुरू में या तो WH फैमिली का वर्ड आता है या आता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ भी वैसे वही मिस्टेक है। ही स्पीक, ये प्रेजेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ स्पीक्स आना था। ये प्रेजेंट ही हो सकता है और ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पर ये पास्ट ही होगा। डिड यू वेक अप अर्ली या डू यू वेक अप अर्ली, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो डिड किया। यहाँ डिड ही स्पीक टू हिज बॉस, उसने अपने बॉस से बात की, तो ये मिस्टेक्स। तो ये नो करेक्टेड फॉर्म, जो वाइट में है ये करेक्टेड फॉर्म है। ओके लगे। शी कॉल्ड, ऐसा कोई ले लो, शी कॉल, छोटा ले लो, शी कॉल्ड, शी डिडंट कॉल। मैं इसकी बात करूँ, शी कॉल्ड, शी डिडंट कॉल, डिड शी कॉल, डिड शी नॉट कॉल, बाय डिड शी कॉल, बाय डिड शी नॉट कॉल। तो ऐसे एक से लेकर आप एक टेंस में से आप कितने ज़्यादा कर सकते हैं, 6 से 10 20 आप एक सिंपली यू कैन ट्राई विद डिफरेंट वर्ब्स एंड स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए तभी आपको चीज़ें समझ आती हैं। अब यूजेस करूँगा, यूजेस हमारे 7-8 हैं, यही करूँगा। कंप्लीटेड एक्शन, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट इवेंट्स, एक्शंस और सिचुएशंस विच अकर्ड इन द पास्ट एंड आर नॉट फिनिश्ड। और अब वो खत्म हो गई पास्ट में। व्हेन वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस वी आर नॉट कंसर्न विद द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। तो ड्यूरेशन एक्शन से कोई मतलब, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, पिछले का ये पहचान है इसकी पास्ट इंडेफिनिट की, ये मैंने अंडरलाइन किया। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, पिछले कल मुंबई गया। शी केम बे आई टू सी मी लास्ट नाइट। देखो कि कम का आता आना, तो प्रेजेंट में आता केम आई टू सी मी लास्ट नाइट, पिछली रात। द बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 2017 में बिल्डिंग बनाई गई थी, पैसिव फॉर्म में। आई बॉट सम चॉकलेट्स ऑन संडे लास्ट, आई बॉट मैंने खरीदे, बाकी आपको ये समझ आता। संडे लास्ट, इन सच सेंटेंसेस द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स उनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आप एडवर्ब का लेसन देख सकते जाएगा। yesterday evening, the day before yesterday, the other day, ago, last morning, last evening, last day, last week, last month, last year, last moment, in March 1999, in May 1998, in 2009, etc. ऐसे टाइम छोटा भी हो सकता है, पिछला काफ़ी देर का भी हो सकता है, तो पास्ट टेंस वहाँ यूज़ करते हैं। यूज द पास्ट टेंस इमीडिएट पास्ट, जब उसने टाइम भी नहीं दिया तो वैसे इमीडिएट पास्ट वो कैसे शो करना। द इमीडिएट पास्ट, द पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस कैन समटाइम बी यूज्ड विदाउट टाइम रेफरेंस टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड ए वेरी शॉर्ट टाइम अगो। द पीएन बॉट ए कप ऑफ टी, पीएन ने खरीदा क्या, कॉफ़ी का एक कप। ऐसे हिंदी आपको बनानी आनी चाहिए अपनी भाषा में। अगर पंजाबी या तेलुगु वाले अपनी भाषा में, यू कैन चेंज दिस, द पीएन बाउट, इट शोज दिस इज द सेंटेंस ऑफ अ पास्ट इंडेफिनिट। हिज फादर केम बैक, वापस आए, केम बैक। जॉन पंच्ड मीन द स्टमक, मुझे पेट में उसने मार, पंच किया। हु लेफ्ट द डोर ओपन, दरवाजा किसने खुला रहने दिया। आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, ये पेन मैंने खरीदा। बस इतना आना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का समझ आ जाए, बाकी सब कुछ हिंदी उसकी वैसे होती, वैसे उसकी इजी लगता है। थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज लेसन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने 2 किए अभी तक। तीसरा, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, जो पुरानी हमारी हैबिट्स होती हैं, जो पुराने हमारे एक्शंस होते हैं, जो इसका हम हैबिट के रूप में, उसका हम पास्ट हैबिचुअल ये टेंस यूज़ करते हैं। द पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस यूज टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स। ही वेंट ऑन संडेज, वह इतवार को जाया करता था। इन माई चाइल्ड आई प्लेड क्रिकेट, बच्चे में मैं क्रिकेट खेला करता था। ऐसे, शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, मुझे वो डिनर पर बुलाया करती थी। मोहन ऑलवेज कैरीड ए बैग, मोहन अपने साथ एक बैग रखता था, कैरी करता। ही स्मोक्ड 50 सिगरेट अ डे टिल ही गेव अप, वह
50 सिगरेट पिया करता था टिल ही गेव अप, जब तक इसने छोड़ी नहीं। द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। तो कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ये मैंने किया ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कर्सली, रेयरली, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी एटस्ट्रा। यूज टू एंड वुड आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून। गांधी जी आफ्टरनून में सूत काता करते थे, कताई किया करते थे चरखे के साथ। शी वुड वेट फॉर अवर लवर इन द पार्क। वो अपने पार्क में अपने लवर का इंतज़ार किया करती थी। ये पुरानी बातें, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एंड डी, द पास्ट, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड आफ्टर द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, एटसेट्रा। जैसे इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग, यानी इस समय उसने, जब उस समय उसका ये समय था, उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। तो ये आपको समझ आ गया, ऐसा कुछ हो तो आगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। आइदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसका हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी कैन एक्सप्रेस, and similarly we can also express that in present perfect tense when a verb of time such as today, this morning, this evening, this week, this month, this year, recently, ऐसा कुछ दिया तो हम he saw me today, उसने मुझे देखा, और ये फुल स्टॉप यहाँ पर आएगा, he has seen me today। हम दोनों तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। he saw me in this week, इस सप्ताह मुझे उसने देखा। he has seen me in this week, उसने मुझे इस सप्ताह देख चुका है। तो ऐसे वी कैन यूज़ इन दीज, ओनली दीज एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा, टुडे एंड दिस वाला, या रिसेंटली। आगे हमारा आता है सुपोजिशन सेंटेंसेस, जो मान लें, सुपोजिशन मान लें, जो मान कर करें। सुपोजिशन सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस विच बिगिन विद इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, बी विश, तो ये ही विशेस, शी विशेस, दे विशेस, दे विशेस नहीं आएगा, इस विश आएगा, सर रहेगा, काट दिया इसको मैंने, दे विश, एटसेट्रा। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज्ड, हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इज यूज्ड। ये देखो मिस्टेक करेक्शन मैंने साथ ही आज पेन मैंने साथ ले लिया था कि कोई मिस्टेक रह जाएगी तो पेन से मैं करेक्ट कर दूंगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो पास्ट लाइक दिस। आई विश, इसमें तो डेफिनेटली आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अगर मैं वैसे मैं सपोज करता हूँ कि मैं बिहार का मिनिस्टर होता। इफ़ आई बिकेम, आई विश, तो ये शब्द हैं जो, इससे पता लगता है कि हम ये यूज़ करना है। आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं बन जाऊँ। आई वुड सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम्स सून, जो बेसिक प्रॉब्लम इंडिया की उसको मैं जल्दी सॉल्व कर दूँगा। तो ये सुपोजिशंस ने सेंस के पास्ट इंडेफिनिट में शो करते हैं। ही टॉक्स एज इफ़ ही वर माई मास्टर, वो बातें ऐसे करता है जैसे वो मेरा स्वामी हो, मेरा मालिक हो। शी बिहेव्स एज इफ़, वो ऐसा बिहेव करती है, शी वर द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी इन द वर्ल्ड, कि जैसे वो सारे संसार में सबसे अधिक इंटेलिजेंट हो, ऐसा बिहेव करते। तो सुपोज मानकर ऐसे, और तो सम एक्शन अनदर एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक सम एक्शन अकरिंग इन द पास्ट एंड अनदर आल्सो अकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्स्ट। एक पहले एक्शन होता है, दूसरा उसके दौरान होता है, तो उसको मैं हम ऐसे शो करते हैं। द फर्स्ट एक्शन एक्सप्रेस बाय पास्ट कंटिन्यूस, जो पहले काम चला होता है उसको हम पास्ट कंटिन्यूस से शो करते हैं। वाइल द सेकंड एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन आई वाज राइटिंग ए बुक, जब मैं किताब लिख रहा था, सुधीर अराइव्ड, सुधीर आ गया। पहले जो काम हो रहा था, मैं लिख रहा था ना, अपना काम कर रहा था, तो सुधीर वहाँ पहुँच गया। शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी। व्हेन हर हस्बैंड अराइव्ड, जब उसका पति, उसका हस्बैंड आ गया।
वाइल ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, यानी वाइल जब वो पानी दे रहा था, एन इंसेक्ट बिट हिम, एक इंसेक्ट ने उसे, कीड़े ने उसे काट दिया। वाइल द गर्ल्स वर डांसिंग, लड़की जब डांस कर रही थी, देयर फादर केम, तो लड़कियाँ थी, उनके पिता फादर उनको देखने के लिए आ गया। तो पहली वाली चीज़ जो फर्स्ट एक्शन है वो हम शो करते हैं इंडेफिनिट से, और दूसरा शो करते हैं व्हाट इज़ द कंटिन्यूस से। कंटिन्यूस की पहचान क्या है? इज एम आर, जहाँ वाज वहाँ वाज वर्ड, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब along with ing, and what is the identification of, what is the identity of past indefinite tense? A second form of verb after subject if it is affirmative. तो ये लास्ट है, बाकी और मैंने मेन लिए हैं जो इसके यूजेस हैं। प्रीवियस एक्शन, सब्सिट्यूट एक्शन, इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। इफ टू एक्शंस अगर इन द पास्ट, अगर पास्ट में कोई दो एक्शन होते हैं, वन एक्शन कंप्लीट्स फर्स्ट, पहला एक्शन पहले पूरा हो जाता है, एंड अनदर एक्शन देयर आफ्टर, और दूसरा एक्शन उसके बाद होता है। द फर्स्ट एक्शन इज कॉल्ड प्रीवियस एक्शन, उसको प्रीवियस एक्शन बोलते हैं, एंड द सेकंड एक्शन इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट एक्शन। द प्रीवियस एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट पहचान क्या है? हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड सब्सिक्वेंट एक्शन उसके बाद एक्शन होता है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शो करते हैं। देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले। कैसे? द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले मर गया था। तो ये है, ये एक्शन कौन सा है? हमारा प्रीवियस एक्शन है, इसको पास्ट परफेक्ट से शो किया। और जो सब्सिक्वेंट एक्शन है उसको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट से, ये हैड डाइड, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट केम, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड, दूसरा देखो दूसरा रूप दे दिया इसको, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो ये हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन हो गया, और ये हमारा प्रीवियस एक्शन हो गया। द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंचा। पहला एक्शन प्रीवियस एक्शन है, ये इसको पास्ट परफेक्ट से शो किया गया, एंड जो हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट से, ही रीच्ड, पता लग जाता है। द टेंस जनरली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसको बड़ा कंफ्यूज करते हैं। दिस टेंस जनरली कंफ्यूज विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब पास्ट परफेक्ट टेंस, दोनों से कन्फ्यूजन होती है। जब हमारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे, और जब मैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट आपको करा चुका हूँगा, तब एक अलग से वीडियो बनेगा कि इन तीनों में कैसे पता चलता है कि हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना, या पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना। बाद में इसके क्योंकि काफ़ी एक लंबा वीडियो बनेगा इसका भी। 12 टेंस क्विक लर्निंग टेबल, ये मैंने इसी टेंशन से ये मैंने स्टार्ट किया, काफ़ी समय लगा इसको बनाने के लिए, तो इसको आप एंजॉय करेंगे। हम 12 टेंस इकट्ठी बात करेंगे, एक सेंटेंस लेकर उसको हर जगह कमाएंगे। तो ये एक टेबल बनाया मैंने एनिमेशन से, और ये देखिए जैसे आप दिख रहे हैं, इस तरफ को मैंने लिए टेंस, प्रेजेंट 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके सब कैटेगरीज मैंने लिए नीचे को, सब कैटेगरीज ये होती है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सो मैं कहूँ ये दिस बॉक्स इज मेंट फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ, ये किसके लगा? पास्ट देन कंटिन्यूस। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ, ये कौन सा होगा? फ्यूचर देन परफेक्ट। अगर इस बॉक्स की बात करूँ, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये बॉक्स का आपको पता लग गया। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, आई स्पीक, पास्ट में क्या होना चाहिए? ये सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ, तो यहाँ आई स्पोक आना चाहिए। यहाँ क्या होगा? विल शैल पहचान होती है, आई शैल विल स्पीक। ओके, इंडेफिनिट का पता लग गया आपको कैसे चेंज करते हैं। अब मैंने कहा आई एम स्पीकिंग, यहाँ आएगा आई वॉज स्पीकिंग। ये मैंने जब टेंसेस की इंट्रोडक्शन की थी, ओवरव्यू दिया था, वहाँ मैंने सारा कुछ बताया था। तो जी आई शैल विल बी स्पीकिंग। अब मैं जब तक टेंस करता रहूँगा, तो मैंने ऐसे कोई ना कोई सेंटेंस से लेकर करा करना है। ऐसे आई हैव स्पोकन, आई हैड स्पोकन आएगा, आई शैल विल हैव स्पोकन, तो शैल विल दोनों से हम यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ हायर आएगा, तो जी आएगा आई शैल विल हैव बीन स्पीकिंग। हाँ, ये शैल विल है तो आगे हैज़ नहीं आता, हैव से पहले कुछ चीज़ आ जाए कुछ और, तो देखो उसके बाद हैज़ नहीं आता, हैज़ अकेला आता सिर्फ,
सब्जेक्ट के साथ, अदरवाइज सदा ही हैव आता। हैव और हैज़ की कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर। इसमें इज़ एम आर होते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये अफर्मेटिव में किया मैंने। ऐसे इसको नेगेटिव कर सकते हो, ऐसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। एक सेंटेंस ये मैंने रेज्ड मैनर में किया, यहाँ इंडेफिनिट की बात की, फिर मैंने कंटिन्यूस की बात। या मैं आगे के लिए जम्बल्ड करूँगा, या मैंने आई स्पीक लिख दिया, मैं पूछूंगा कि इसका पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा, एकदम आपको पता होना चाहिए आई हैड स्पोकन। मैंने यहाँ लिख दिया आई शैल विल हैव स्पोकन, मैं बोलूँगा जल्दी इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करिए, तो एकदम आपको ये चेंज करना आना चाहिए। आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ मिल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी देखो, अभी आएगा इसमें इसका मेन चीज़। बाकी सब्जेक्ट तो ये तो हो गई ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में हो गए। इसकी मेन पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या और आएगा जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस। पास्ट की पहचान वर्ब का सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव की बात हो रही, और फ्यूचर में शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखिए कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, कहते हैं इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इंग, वाज वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं, बाकी सेम है सारा। ये नॉन, ये वाले नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं इनको, ये B1 नहीं है, बाकी तो वो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं, इज एम आर। और देखिए आगे, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हैज़ हैव विन, हैड बिन, ए बिन, शैल विल हैव बिन वर्ब की फर्स्ट। तो ये दोनों वाइट किए मैंने, ये दोनों कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट इंग, यहाँ टाइम के साथ भी होगा, जहाँ टाइम केवल अंडरस्टूड होता है, नहीं भी लिखे तब ये हैज़ हैव बिन या हैड बिन की पहचान है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो एकदम आपको ये, अब सिर्फ ये इसके शुरू में सब्जेक्ट है और इसके बाद में हर जगह ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंने किया। ऐसे दो टेंसेस का नाम बताइए, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता स्टार्टिंग में। तो जहाँ नज़र आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव फॉर्म में कोई नहीं, बाकी हर जगह तो हेल्पिंग वर्ब है। नोट करना या नेगेटिव करना भी इसको ईजी है, और इसको डायरेक्ट करना भी ईजी है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू या डज आता है। पास्ट में क्या आता है, डिड आता है, या डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और प्रेजेंट में जब नेगेटिव या डायरेक्ट करता है, जो है डू या डज आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस नहीं आता। तो इंडेफिनिट की सबसे बड़ी पहचान कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, नेगेटिव या इंटरगेटिव होगा। कंटिन्यूस में पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग आता है, तीनों देखिए। परफेक्ट की पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान विन लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगा होता है। तो ये आपको टेबल कैसा लगा? इसको बनाने के लिए मैं 3-4 घंटे आज लगाए रिकॉर्डिंग करने से पहले। तो मेरे ख्याल इसको लाइक करेंगे। अब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज आपको दी है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डू एज डायरेक्टेड जैसा बोला गया वैसे आप करेंगे। तो पैरट फ्लाइज आउट ऑफ द केज, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका जैसा बोला गया आप वैसे इसका चेंजेस करेंगे। तो ये हमारे 8 कितने सेंटेंस है, ये 7-8। ये गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका चेंज इनटू नेगेटिव करेंगे। जैसा बोला गया बिल्कुल वैसा करें, अपनी मर्जी नहीं करनी। जैसा बोला गया सप्लाई द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। तो जो ब्रैकेट्स में दिए वर्ब दिए, इसमें हमने यहाँ रखना है कौन सा, बड़े ध्यान से करना है इसको। जो मैं थोड़ा पिछले जो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी हमारी 29th लेसन, वो ईजी थी, थोड़ा सा इसमें ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और लास्ट में चेंज इनटू इंटरोगेटिव इसका कर दिया। तो ये बने हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 15 एक्सरसाइज बने आपके ये। तो ये आज मैंने किया, थोड़ा तेज़ किया, नहीं तो ये 50 मिनट में चला जाना था। थैंक्स ए लॉट। आज थोड़ा रिकैपिचुलेट करेंगे, थोड़ा हम रिवाइज करेंगे एंड में क्योंकि हमने किया क्या आज हमने ये किया। वी ट्राई टू डिस्कस द फॉलोइंग, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ पास्ट टेंस। मैं टाइम लाइन के साथ फ्यूचर और पास्ट के बारे में भी बताया। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस विद एग्जांपल्स, स्ट्रक्चरली वहाँ एग्जांपल भी ऑटोमेटेड मोड से आती थी। रेगुलर एंड रेगुलर वर्ब्स एंड हाउ टू यूज़ देम इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बेंट का गो बन जाता है नेगेटिव में। सोल्यूशन ऑफ सेल्फ एक्सरसाइज, आप दैट वाज वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल था वो। आपने उसका क्या लेना है, आपने यू हैव टू टेक स्क्रीन शॉट कंपेरिजन करने। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक ग्लिम्स उसका आइडिया दिया, एन आइडिया कि पास्ट फॉर्म वर्ब की कैसे कॉमन मिस्टेक्स, कौन सी मेजर मिस्टेक्स, टेंस की हो सकती है, स्पेलिंग्स की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की हो सकती है, ऐसे बड़ी हैं। यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूजेस किए, ए से लेकर एच तक किए, 8 किए।
टर्टल टेंस क्विक लर्निंग टेबल इस बार इंट्रोड्यूस किया और हर जगह आपको बार बार मिलेगा, आप भी कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज सोल्यूशन इन नेक्स्ट लेसन। हाँ, सोल्यूशन मैं भी नहीं दूंगा, बच्चे बीच में ट्राई करते हैं तो इसका सोल्यूशन नेक्स्ट लेसन में मिल जाएगा। कुछ बच्चे डिमांड करते हैं, उनको मैं बीच में दे सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ आपको लेसन में मिलेगा। हाउ वाज द लेसन? लेसन आपको कैसा लगा? विल यू लेट मी नो इट इन द फॉर्म ऑफ कमेंट? कि आप समय निकालेंगे एक छोटा सा कमेंट करने के लिए, ताकि मुझे पता लगे, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बड़ी वो देते हैं, एक एनर्जी देते हैं और अच्छा करने की प्रेरणा मुझे मिलती है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आप एंड तक मेरे साथ बने रहे और आपने आज नया क्या सीखा, इसमें नई चीज़ें क्या आपको मिली। 40 या 41 मिनट्स का ये बन जाएगा, इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।